linear inequalities का questions. An employer recruits experienced X and fresh workman Y for his firm under condition that he cannot employ more than 9 people. X and Y can be related by the inequality. Now see, experience X है, fresh workman Y है, लेकिन दोनों को मिला के आप 9 या 9 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? X plus Y should be less than or equal to 9. Now, X and Y are number of workers. So there is a condition that X should also be greater than equal to 0 and Y should also be greater than equal to 0. ये ना सम में नहीं दिया जाता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. So what is your answer here? ये तो नहीं होगा. Yes, this is right. This is not possible. So only B is right. The second sum was, on an average, experienced person does 5 units of work while a fresh one 3 units of work daily. But employer has to maintain an output of at least 30 units of work per day. तो इसकी inequality कैसे होगी? Experienced person 5 unit of work करता है और ये जो fresher है ये 3 unit of work करता है, लेकिन work कम से कम 30 unit का होना चाहिए. तो 5x plus 3y less than greater than equal to 30 or x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. So your answer will be C. Now the next one, the rules and regulation demand that employer should employ not more than 5 experienced hands to 1 fresh hand, and this fact can be expressed as. अब आपको 5 या 5 से ज्यादा, आप 5 से ज्यादा लोग एक्सपीरियंस लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो एक फ्रेशर के अगेंस्ट. अगर एक फ्रेशर है तो 5 एक्सपीरियंस तक ही आप ले सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस X है और फ्रेशर Y है. तो फॉर 1 फ्रेशर यू कैन एम्प्लॉय एट द मोस्ट 5 एक्सपीरियंस्ड. So 5 experience for 1 fresher, I can always write it as 5y is greater than equal to x. Or I can also write y is greater than equal to x by 5. So उसका आंसर होगा A और C दोनों. एग्जाम में तो ऐसे दोनों नहीं आते हैं, लेकिन आपके मॉड्यूल में उन्होंने दिया है तो हम लोग उसको दोनों को टिक करेंगे. यहाँ एग्जाम में एक ही आएगा. Only there will be only one right answer. The union forbids him to employ less than 2 experienced person to each fresh person. यूनियन ने आपको बोला है कि भाई आप एक फ्रेश के अगेंस्ट कम से कम 2 लोगों को, 2 एक्सपीरियंस को तो लेना ही पड़ेगा. एक फ्रेशर के अगेंस्ट 2 एक्सपीरियंस तो लेना ही पड़ेगा. तो एक फ्रेशर should be less than or equal to x by 2 or 2y should be less than or equal to x. इसका मतलब एक्सपीरियंस जो है वो 2 से 5 के बीच में होंगे हमेशा, अगर दोनों कंडीशन को देखा जाए तो. So 2y is less than equal to x or y is less than equal to x by 2. This is your answer, and this is y is less than equal to x by 2 is given. So B is your answer. Now the next one, the graph to express the inequality x plus y less than equal to y. अब इसका ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग x plus y less than equal to y? तो आप इनइक्वालिटी को इक्वालिटी ट्रीट करोगे. जैसे हम लोगों ने सीखा है इनइक्वालिटीज के ग्राफ कैसे निकाले जाते हैं. x plus y less than equal to 9. तो आप इसको पहले इक्वल ट्रीट करोगे. x plus y is equals to 9. If x is 0, y is 9. If y is 0, x is 9. So if this is my coordinate axis, this is 0.9 and this is 0.9. This is my line.
and it has to be less than, so this is the area. Do we have the answer? Yes, A is the answer. 9, 9 and this is the area. This is not the area because this is greater than. और ये तो सिर्फ लाइन है, तो ये नहीं होगा, सिर्फ A आंसर होगा आपका. Next, the graph to express the inequality 5x plus 3y greater than equal to 30. Again, you will treat this inequality to be equality. 5x plus 3y greater than equal to 30. तो आप इसको 3y is equals to 30 कंसिडर करोगे. x को 0 बोल दिया तो y 10 होगा. y को 0 बोला तो x होगा 6. तो आपके पॉइंट्स क्या है? 0, 10 and 6, 0. Join them. Greater than equal to. तो यहाँ पे आप अगर यहाँ देखोगे तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू की वैल्यू आएगी. दो चीजें, आप इसमें एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो, यू कैन चेक द वैल्यूज वेयर इट इज ग्रेटर. और ऐसी लाइन आती है तो इस कॉर्नर पे खड़े रहोगे, राइट हैंड साइड इज योर ग्रेटर देन साइड, तो ये आएगा आपका. सो योर आंसर विल बी सी. Now the graph to express the inequality y is less than x by 2. Again, you will convert this inequality into equality. Y is less than equal to x by 2. No, y is equals to x by 2. अगर y को 0 ले लिया तो x भी 0 आ जाएगा. अगर x को 0 लिया तो y भी 0 आ जाएगा. तो इधर प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पे आपको कोई और वैल्यू ट्राई करनी पड़ेगी. If you take x is equals to 1, y will be 1 by 2. If you take x is equals to 2, y will be 1. Now I will draw the line. क्योंकि यहाँ पे 0, 0 डाल के कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने दूसरे पॉइंट से किया. So this is my coordinate axis. 1 point is तो 0, 0, ये तो इधर ही आएगा. दूसरा क्या है, अगर x1 है तो y क्या है? 0.5 है, तो इधर आ रहा है शायद 1 और 0.5. और अगर x2 है तो y 1 है, इधर आ रहा है. तो आपकी लाइन कुछ इस तरह से होगी. And now you want to find out the greater than the less than. तो यहाँ पे ना कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, आप वैल्यूज को ट्राई करो. ट्राई द वैल्यू. सपोज यहाँ पे एक वैल्यू आएगी -1, 1. मैं उन वैल्यू को ट्राई करूंगी इसमें. तो y है 1 और x है -1, -1 by 2. तो आर दे इक्वल? नो. इस इनइक्वालिटी को आप इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हो. y is equals to x by 2. You can also write it as 2y minus x is equals to 0. और ये क्या है? साइन लेस देन इक्वल टू 0, तो 2y minus x should be less than equal to 0. नाउ चेक, अगर मैंने y को 1 डाला और x को डाला -1, तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है? चेक करो. तो ये 2 + 1 3 आ रहा है, तो नहीं, ये नहीं होगा. तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग. यहाँ पे वैल्यू होगी 1 और -1. I'll put it here. So it will be 2 into -1, -1. That is -2, -1, -3. Is it less than equal to 0? Yes. तो ये आपकी रिक्वायर्ड एरिया है. जब लाइन ओरिजिन से पास होती है तो रिक्वायर्ड एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो D इज योर आंसर. ऐसी लाइन है और रिक्वायर्ड एरिया आपकी नीचे है. D इज योर आंसर. अदरवाइज तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है कि सिंपल अगर इस तरह की कोई लाइन होती है तो आप इस कॉर्नर पे खड़े रहो, ये आपकी ग्रेटर देन होगी, ये आपकी लेस देन एरिया होगी.
दिस इज तो शॉर्टकट। लेकिन जब लाइन ओरिजिन से क्रॉस होती है तो ये शॉर्टकट काम नहीं आता, तो आपको ये वैल्यूज लेके ट्राई करना पड़ता। देन द नेक्स्ट वन, now the next one is L1 is 5x plus 3y is equals to 30. L2 is x plus y is equals to 9. Y is x by 3 and y is x by 2. And you have to find out the shaded portion. The common region shown in the diagram refers to L1, L2, L3, L4. उन्होंने ये दिया है, आपको ये शेडेड पोर्शन किस चीज को रेफर करता है वो देखना है। तो देखो L1 का ग्रेटर देन वैल्यू है, ये तो आप इधर ही देख के बता सकते हो। L1 का जो है ना, L1 जो है वो ग्रेटर देन साइड पे दिख रहा है क्योंकि शेडेड रीजन इधर है। अब L2 ये है और L2 का ये साइड पे दिख रहा है, तो ये शायद लेस देन है, क्योंकि लेस देन के लिए ये साइड पे आएगा। लाइंस तो ऐसी है, अगर आप इधर खड़े रहोगे तो ये राइट हैंड साइड पे ग्रेटर देन है और लेफ्ट हैंड साइड पे लेस देन, तो L2 का लेस देन एरिया है। अब L4 को देखते हैं हम, L3 को देखते हैं हम लोग। L3 का इधर है। Now see, this L3 is most probably passing through origin. Okay, passing through origin actually उल्टा हो जाता है, तो इधर आपका ग्रेटर देन आएगा और इधर आपका लेस देन आएगा। तो L3 का जो है वो ग्रेटर देन एरिया है यहाँ पे, और L4 का जो है वो लेस देन एरिया है यहाँ पे। हम लोगों ने अभी एक पहले वाले सम में देखा ना, लेस देन एरिया नीचे आ रहा था। तो अब हम लोगों ने जब एनालाइज किया तो हमको पता चल रहा है कि ये L1 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ग्रेटर देन कहाँ पे है? बी में है, सी में है और डी में इक्वल टू नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन होना चाहिए। तो L1 शुड बी ग्रेटर देन, देन L2 हैज टू बी लेस देन। तो L2 लेस देन कहाँ पे है? ए और बी में है, तो ए तो कैंसिल हो गया, बी में है, क्योंकि ए इज लेस देन। L1 का ए लेस देन है तो वो नहीं चलेगा। बी में ग्रेटर देन है और L2 का भी लेस देन होना चाहिए, तो बी में ही लेस देन है। इधर और इधर नहीं चलेगा क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि आपका बी आंसर है। लेकिन फिर भी L3 हैज टू बी ग्रेटर देन, यस L3 इज ग्रेटर देन। L3 is less than here, it is less than here, it is greater than no. So L3 has to be greater than and L4 has to be less than. ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे बी में, तो बी आपका राइट आंसर। थोड़ा सा डायग्राम को ठीक से देखते हैं तो ही पता चलता है। Now question number 2, a dietitian wishes to mix two kinds of food so that vitamin content of mixture is at least 9 units of vitamin A, 7 of B and 10 of C and 12 units of D. The vitamin content per kg for food is given. Assuming X unit of food 1 is to be mixed with Y unit of food 2, the situation will be expressed as. अच्छा, दो फूड को मिक्स कर रहे हैं वो लोग, F1 और F2 को। ओके, F1 में विटामिन ए के 2 यूनिट्स है, विटामिन बी के 1, विटामिन सी के 1 और डी के 2, और F2 में विटामिन 2 के 1, 1, 2, 3। Now how much vitamin of A, B and C you require? तो उन्होंने बोला है विटामिन ए के एटलीस्ट 9 यूनिट्स होने चाहिए।
विटामिन बी के एटलीस्ट 7, मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेंगे, विटामिन सी के 10 और डी के 12 होने चाहिए। तो ये तो एक्स है, ये है वाई। अगर मैं x यूनिट ऑफ फूड 1 और y यूनिट ऑफ फूड 2 को मिक्स करूं तो मुझे विटामिन ए के 2x यूनिट्स मिलेंगे फूड 1 से, और b के मिलेंगे y यूनिट्स, एंड दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ये कम से कम 9 होने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे। Similarly here it will be x plus y greater than equal to 7. Here it should be x plus 2y greater than equal to 10. And here it is 2x plus 3y greater than equal to 12. Again, because this is food units, so x should be greater than equal to 0, y should be greater than equal to 0. See where you get this. 2x plus y greater than equal to 9. नहीं, यहाँ पे तो less than है, ये नहीं होगा। ये 30 कहाँ से आया, ये नहीं होगा। ये होगा 2x plus y greater than equal to 9, ये भी है 2x plus y greater than equal, x plus y greater than equal to 7, yes, x plus 2y greater than equal to 10, तो यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे है 2x plus 3y greater than equal to 12, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये कंडीशन इधर की रॉन्ग है, तो इधर ही राइट है, एंड दिस, सो डी इज योर आंसर। This is the application of inequalities.